does God allow problems, difficult situations in our life? हमने इस प्रश्न से शुरू किया था कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में समस्याएं या दुखों को आने का इजाजत देते हैं। So we took the Bible passage from Mark chapter 4 verses 35 to 41. और जो बाइबल से हमने भाग लिया था मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 35 पद से 41 पद तक। I hope you have the whole story in your mind. और आशा करता हूं कि वो पूरी कहानी जो है आपके मन के अंदर है। Jesus was asking his disciples, let's go to the other side of the lake. यीशु अपने चेलों से कह रहे थे कि आओ हम झील के उस पार चलें। The purpose of their sailing or their travel to the other side of the shore is to meet just one person probably. And we see that one person is being healed. The demon-possessed person is being healed by Jesus. और उस पार जाने का हम केवल एक ही उद्देश्य को देखते हैं कि केवल एक व्यक्ति उस पार में था जो दुष्टात्मा से ग्रसित था जो चंगा हो जाता है। That we read in next chapter, chapter 5. और उसके अगले अध्याय 5वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं पढ़ते हैं। We will not get into that passage, but we are going to look into the previous event happened as they were sailing. और हम उस बात की घटना को नहीं देखेंगे बल्कि उसके पहले जब वो नाव खे रहे थे तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। Chapter 4 verse 35 we understand it was about the evening or it was in the evening they started their sailing. और 35 वचन के अनुसार में हम पाते हैं कि जब उन्होंने नाव चलाना शुरू किया तो ये सांझ का समय था, संध्या का समय था। We know that towards the evening usually there will be big tides and big waves and winds in the sea or lake. और हम जानते हैं कि समुद्र में शाम के समय में जो है आंधियां बढ़ जाती है, हवाएं बढ़ जाने के कारण से उसके लहरें जो हैं तेज हो जाती है। And it happened to them on the way that big wind blew and water started coming inside and they were about to sink in that lake. और ऐसा हुआ कि हम जानते हैं कि आंधी जो है तेज हो गई और पानी नाव में आने लगी और नाव जो है वो डूबने लगा। And Jesus was sleeping there in the boat. और यीशु भी बोट में सो रहे थे। So verse 38 we read Jesus himself was in the stern asleep on the cushion. और 38 पद में हम पढ़ते हैं कि वह यीशु आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। And the disciples woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? और तब चेलों ने उन्हें जगा करके कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? From the whole context we understand that the disciples were trying their very best to save their life without disturbing, without calling Jesus. और यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि चेले अपनी पूरी ताकत पूरी समझ को लगाने की कोशिश कर रहे थे बचने के लिए और वो नहीं चाह रहे थे कि यीशु को नींद को डिस्टर्ब करे। But things went out of their control. लेकिन जो ये बातें थी उनके नियंत्रण से बाहर चली गई। They had no other option except to call Jesus and ask his help. अब कोई दूसरा उपाय उन्हें नहीं सूझा यीशु को जगाने के बजाय। And Jesus woke up from the sleep and calmed the sea. और यीशु नींद से जाग करके आंधी को शांत कर दिया। The first principle we can learn from this passage is that sometime God let us go through certain problems and storms in life so that we will come to him and trust him for our needs. और इस यहाँ से हम एक सिद्धांत को सीखते हैं कि परमेश्वर कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं और बाधाएं आने देता है ताकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख जाएं। Sometimes we think that we can solve our life's problem with our education, with our wisdom, with our ability, but there will be times in life that we will be helpless except to come to Jesus. और कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी ज्ञान के द्वारा, अपनी धन के द्वारा हम अपनी समस्या को सुलझा लेंगे,
लेकिन कई बार ऐसा परिस्थितियां आता है कि हमें यीशु के पास आने के बजाय और कोई दूसरा चारा नहीं होता। Tonight we need to understand that there are situations, there are incidents, events, and areas in our life that we are helpless. We need God's help. और हम कई बार इस बात को हम समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां कोई उपाय काम नहीं करता है और जहां हमें परमेश्वर की मदद की आवश्यकता होती है। Those times our education, our ability, our influences, our experiences are not going to help us, but trusting in God, it helps us. और कई बार जो हमारा शिक्षा है, हमारा जो शिक्षा है, हमारा जो अनुभव है, हमारे जो लोग हैं या हमारा जो रिसोर्सेस है, ये सारी चीजें हमें मदद नहीं करती है, बल्कि केवल परमेश्वर ही हमारा सहायक होता है। So dear brothers and sisters, why does God allow certain difficult situations in our life? It's because that we will come to him and we will run to him for his help. We will continue to trust in him. तो परमेश्वर इसीलिए हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और समस्याएं आने देते हैं ताकि हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें। Now the second part of that, let's go to the second point there. और हम दूसरे भाग में जाएंगे। Now verse 39 we read. और 39 पद में हम लोग पढ़ते हैं। 39 and 40 let's read. 39 और 40 पद को हम लोग पढ़ेंगे। God up and rebuked the wind and said to the sea, hush, be still. And the wind died down and it became perfectly calm. And he said to them, why are you afraid? Do you still have no faith? 39-40 में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? After calming down the sea and the wind, Jesus turned to the disciples and asked a very serious and important question. और आंधी को शांत करने के बाद यीशु मसीह चेले की ओर मुड़ करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उन्होंने पूछा। Why are you afraid? तुम क्यों डरते हो? Why are you afraid? तुम क्यों डरते हो? What did Jesus mean by that? इसका मतलब क्या है यीशु का? If you read verse 35, अगर आप 35 पद को अगर पढ़ेंगे, we understand the fact that it is Jesus who told them, let's go to the other shore. अगर आप 35 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पाते हैं कि ये यीशु मसीह थे जिसने कहा कि चलो आओ हम उस पार चलें। It is me who told you, let us go. ये मैं हूं जो तुझसे कहा कि चलो हम चलें। It was not your idea, but it was my idea that we will go. ये तुम्हारा विचार नहीं था और इच्छा नहीं था, बल्कि ये मेरी योजना था कि हम उस पार चलेंगे। It is no one else, but it's me who called you for this journey. और कोई नहीं बल्कि मैंने तुम्हें इस यात्रा के लिए बुलाया है। So why don't you just believe in me? तो तुम क्यों नहीं केवल मुझ पे विश्वास करते हो? Why don't you just trust in me? तुम क्यों नहीं मुझ पर केवल भरोसा रखते हो? Why are you afraid? तुम क्यों डरते हो? I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Why don't you believe in me? क्यों तुम मुझ पे विश्वास नहीं I रखते? will not let you go down. मैं तुझे नीचे जाने नहीं दूंगा। I have not called you so that you will die on your way. मैं इसलिए नहीं तुझे बुलाया कि तुम अपने रास्ते में मर जाओ। If it is me, so it is me who called you, and I will not let you be perished. और ये मैं हूं जो मैं तुझे बुलाया हूं और मैं तुझे नाश होने नहीं दूंगा। So Jesus is asking another question. तो यीशु एक दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, Do you still have no faith? क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Jesus is amazed when he didn't see faith in them. जब यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो उनके अंदर विश्वास को नहीं पाते हैं। It is sometimes happen, sometimes it happens with us
that we know that it is God who called us, and God is faithful, and God is powerful, God knows everything, but sometimes we get afraid. और कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम जो है डर जाते हैं और डरने लगते हैं। Now it is through this incident Jesus is helping his disciples to grow in their faith. और इस घटना के द्वारा यीशु मसीह अपने चेले को विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। When difficult times comes to our life, it is not to destroy us, but it is to help us to grow in our faith in Christian life. हमारे जीवन में समस्या हमें नाश करने के लिए नहीं आती है, बल्कि मसीही जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए आती है। So when sickness comes, when difficult times come, Jesus is telling, don't be afraid. It is not to destroy you, but to help you to grow in your faith. और जब कठिन परिस्थितियां आती है, समय आती है, तो यीशु कहते हैं कि ये तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। So we have seen two things now. तो हमने दो बातों को देखा है, What are those two things? और वो दो बातें क्या हैं? God allows a difficult situation, times and events in our lives so that we will trust Him and also we will grow in our faith. तो परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को, समस्याओं को और दुखों को आने के लिए देते हैं, ताकि हम उन पर भरोसा रखें और विश्वास में आगे बढ़े। Now the last thing we see in 41 verse 41. और अंतिम बातें हम 41 पद में पाते हैं। What do we read there? हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? Now they became very much afraid and said to one another, वे बहुत ही डर गए और आपस में कहने लगे, who then is this that even the wind and the sea obey him? यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? Wow, they are getting amazed about Jesus. अब यहाँ वो यीशु के बारे में वो आश्चर्यचकित हो जाते They हैं। are seeing a different Jesus in their life for the first time. अब यीशु को एक अलग तरीके से पहली बार वे अपने जीवन में देखते हैं। They have seen Jesus going around in the village and healing the people. पहले उन्होंने देखा है यीशु को गांव-गांव जाते हुए, लोगों को चंगा करते हुए, But this is the first time for them to see that he is, he is controlling, he is exercising his authority over nature. और ये पहली बार है जब वे इस बात को देख रहे हैं कि यीशु जो है अपने अधिकार को जो है वो प्रकृति के ऊपर में दिखाता है। They are going one step further, knowing Jesus. अब यहाँ वो यीशु को जानने में एक कदम वो आगे बढ़ रहे हैं। So they are asking one another, look at that, even the wind and the sea, they obey him. Who is this man? He's great. He's great God. और अब एक दूसरे से वो आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि देखो आंधी और तूफान भी अब उसकी आज्ञा मानते हैं, वो जो है एक महान परमेश्वर है। According to the belief of the disciples, only God has authority over nature. और चेलों के विश्वास के अनुसार में या जानकारी के अनुसार में कि केवल परमेश्वर के हाथ में प्रकृति के ऊपर में नियंत्रण करने का अधिकार है। Now here Jesus is doing that. और यहाँ यीशु इस कार्य को अब कर रहे हैं। He is not just mere a man or nor a prophet, but he is more than that. अब यीशु केवल एक मनुष्य नहीं और एक केवल भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि उससे बढ़ करके हैं। This event helped them to know Jesus better or more. और ये घटना उनको मदद किया है यीशु को जानने के लिए बेहतर तरीके से। So dear brothers and sisters, इसलिए भाई और बहन, God allows difficult times in Christian life so that we will know our God better and better. परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों और समस्याओं को इसलिए आने देते हैं ताकि हम परमेश्वर को और बेहतर तरीके से हम जाने। It is through this kind of life experiences we know God, that He cares, or इस प्रकार के जीवन के अनुभव के द्वारा हम समझते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारा ख्याल करते हैं, ध्यान रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So let's not get afraid
when difficult times comes to our life. इसलिए प्रियो, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आती है, हम न डरें। It is not to destroy our life. ये हमारे जीवन को नाश करने के लिए नहीं। So don't get afraid when things come against your life. इसलिए आप मत डरे जब चीजें आपके जीवन के विरुद्ध में हो रही है। I don't know what is the life situations that you are going through. मुझे मालूम नहीं आप अपने जीवन में किस प्रकार के समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, But the Lord is speaking you tonight. लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। The problems, the difficult times, situation that is coming against you is not to destroy your life, but to build you up in your faith. समस्या या दुख और तकलीफ जो आपके जीवन में आती है, वो आपको नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए है। What would you do now? अब आप क्या करेंगे? Go to Him and trust in Him. आप उनके पास जाएं और उन पर भरोसा रखें। Tell your problem. अपनी समस्या को बताएं, Have faith in Him. उन पर विश्वास रखें, Know that He has control over your life situation. और आप जानिए कि आपके जीवन के हर एक परिस्थिति के ऊपर उनका नियंत्रण है। God is greater than your problem. परमेश्वर जो है आपकी समस्या से बड़ा है। God is bigger than your problem. परमेश्वर आपकी समस्याओं से बड़ा है। That you and I will continue to trust in Him, grow in our faith, and know Him more and more. ताकि हम और आप उनमें आगे बढ़े, उन पर और विश्वास रखें, भरोसा रखें और उनको अधिक से अधिक और जाने। May the Lord add His blessings and continue to speak to you as we meditate again, through this passage. और जब आप इस संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर आपको इसके द्वारा और आपके जीवन में आशीष करे और आपको आगे बढ़ाए। God bless you. Thank you. परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।